السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز خواتین و حضرات، جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادیاں اور نانیاں ہمیں کوکاف کے قصے سناتیں۔ ان قصوں میں کوکاف کی خوبصورت پریاں، کچھ دیو اور جن بھی شامل ہوتے۔ جب ٹی وی آیا تو اس پر باقاعدہ ایسے پروگرام بچوں کے لیے بنائے گئے جن میں تمام پرانے قصے فلمائے گئے اور ہم بڑے شوق سے پریاں، جن اور دیو اڑتے دیکھتے۔ جب بڑے ہوئے تو کھوج لگانا شروع کیا کہ کوکاف ہے کہاں۔ پتہ چلا کہ کوکاف پاکستان کے شمال میں سوویت یونین کی مختلف ریاستوں میں موجود ہے۔ خیر، دل میں کوکاف دیکھنے کی تڑپ تو تھی مگر کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر اللہ پاک بھی انسان کے لیے اچانک ایسے اسباب بنا دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک ایسی وادی جو جنوں، دیو، پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے، ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ ناظرین، کوکاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو کیسے جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوکاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ یہ کہانیاں عام طور پر ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ کوکاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہے۔ کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوکاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس میں آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوکاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوکاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوکاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو بوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوکاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس بات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوکاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں۔ جو عورتیں ہیں ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتی ہیں، اور یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں
जर्रा बराबर भी गफलत नहीं करते। उनका खाना भी हवा, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, और इब्लीस को भी नहीं जानते, और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोकाफ को दुनिया की जिल्द के तौर पर तख्लीक किया। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, यहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज को भी तख्लीक किया है। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं। उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह पाक से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मेराज की रात को उनकी मुलाकात कोकाफ के लोगों से हुई थी, और वहाँ के लोगों ने आपके इस्लाम को कबूल करने की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नज़दीक दरअसल कोकाफ उस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि कोकाफ से मुराद मिसाल में वाक़या वो पहाड़ी सिलसिला है जो बज़रिए कशफ औलिया कराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोकाफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हक समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना फिल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ किसी चीज़ की मरकज़ को जाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरत का नाम सूरह काफ है, जो इस कोकाफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इसमें अल्लाह पाक की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोकाफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी इस ज़मीन में कहाँ मौजूद है, उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मौर्रखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अरबी दास्तानों के कोकाफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट एल्ब्रूस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे असवद और बहिरा कज़विन के दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो 18,506 फीट यानी 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़ेह नहीं है कि कोकाफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया, इसलिए कि पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोकाफ के शुमाली दामन में वाक़या चेचनिया की छोटी सी जमहूरिया, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, सदियों से रूस से नबरद आजमा रही है। कोकाफ का यह पूरा इलाका 16वीं सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। लेकिन चेचनिया की अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चेचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कफकास का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कफकास और मावरा कफकास में तकसीम करता है। शुमाली कफकास रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कफकास में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाक़ हैं। कफकास के पहाड़ काफ़ी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रूस और कॉज़बेक हैं, जिनकी बुलंदी बिलतरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दो चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिशफिशां हैं। पहाड़ों की मखरूती शक्ल, ढलवानों पर गर्म गैसों का इखराज और मादनी पानी के सरचश्मे से आतिशफिशानों के गुजरे वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। सबसे मकबूल सरचश्मों के नाम नारजान, बरजूमी और यासीन तोकी हैं। इनके करीब मशहूर सेहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़े हैं, जहाँ रूसी लोग सोवियत ज़माने से आराम व तफरी करना पसंद करते हैं। यहाँ आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है।
अगर कोकाफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नजर आता है। शुमाली कफकास के हालात मौसमी तौर पर मोतदिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को वहां नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं उस इलाके तक नहीं पहुंचती। जाड़े में शुमाली कफकास में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहां से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कफकास में बहुत ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में जब उनकी बर्फ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं, इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कफकास के सबसे बड़े दरिया कोबान और तेरीक हैं। कफकास सेहत बख्श हवा का एक जखीरा है और उसके मनाजर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। रूस के कोपैमाओं को कफकास से बड़ा लगाव है। अक्सर कोपैमा एल्ब्रुस को सर करने की कोशिश करते हैं। कफकास की वादियों में कोपैमाओं के कई कैंप और मकामे तबरदा और दुम्बी में पहाड़ी उसकी अंग के अड्डे कायम हैं। शोबा सेहत के लिहाज से कफकास के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कोह ओल्पस से कुछ कम नहीं है, जबकि बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोकाफ के एंटार्कटिका के वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है, जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर की एटलांटिस सिटी को ही कोकाफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की नई दरियाफ्त डायमेंशन भी कोकाफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशन वजूद रखती हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। इन मजीद डायमेंशंस में कितने सयारे, कितने सितारे और दुनिया आबाद हैं, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक रूह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत जहन्नुम इन्हीं डायमेंशन से मौजूद है, जिनमें इंसान मौत के बाद जाता होता है। मुमकिन है कि कोकाफ भी उन्हीं 11 डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना मुमकिन है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोकाफ के मुतल्लिक जिनों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ आवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जिन्नात का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।